SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Assistant Professor Varsha Bharti. So today we are going to learn about the subject Advertising Design for class TYBA MMC for specialization advertising. So semester 6 and module 1st. So let us cover the first topic, that is Introduction to Advertising Design. So what do you understand by the term advertising? Whenever we leave home, we see several ads on billboard, hoardings, on walls. We see several kinds of outdoor media ads. And when we are at home, we watch TVCs, that is television commercials. So these are the different kinds of ad which we go through at our daily life basis. And there are internet ads such as social media platform ads, considering the platforms of Instagram or Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. These are all the types of online social media platform advertising. So the first topic which we are going to cover in this PPT is role of advertising, role of agency departments. So the first department which we are going to learn is accounts department. Accounts department क्या करता है? सबसे पहले the first person to come in contact with client is account executive. So what that person does is सारी details लेना. What is the budget of the client? What is the requirement? How long the ad campaign should be? What time period they want to launch the ad? What is the target audience? Everything is covered by the account executive. Then comes the account manager who does all the managing part, budgeting part. इतने budget में इतना ही हो सकता है. He keeps a account of everything कि क्या requirements है, क्या detailing चाहिए उनको, कौन सी strategy planning करनी है. And then comes the account planner जो planning करते हैं कि इतने budget में हम लोग ये ad shoot कर सकते हैं, ये location पे कर सकते हैं, इतना हम लोगों का पैसा production में जाएगा. So all the bifurcation of the money and planning. Then comes the execution part, which is done by the other departments. So this is the account department, and these all activities are covered under account department. Next is media department. So media itself says कि what kind of platform, which platform they are going to use for placing the ads. It can be radio, it can be TV, it can be magazine, and it can be social media platforms. So it depends कि कस्टमर का बजट क्या है. एज ए एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम लोग उनका कौन सा कैंपेन रन करवा सकते हैं, कितने टाइम के लिए करवा सकते हैं, कौन से टाइम स्लॉट पे करवा सकते हैं. दिस ऑल इज डन अंडर मीडिया डिपार्टमेंट. Next is creative department. So the creative department does creative thinking, creative idea formations, doing different creative things to make the ad more innovative and more attractive and attention seeking. Next is production department. So production department can be in-house or it can be outsource. आउटसोर्स मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना, किसी के साथ काम करके वो एड शूट कर लेना, या फिर इन हाउस प्रोडक्शन की सारा प्रोडक्शन हम ही करेंगे. एड शूट हमारा खुद का प्रोडक्शन डायरेक्टर होगा, प्रोडक्शन असिस्टेंट होगा, सारा कास्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. So the production department can be used in print as well as in TVC. Whenever we are shooting a commercial for television, we should use production department. And the next is print. Print में भी जब हम लोग न्यूज़पेपर की एड्स होती है या मैगजीन की एड्स होती है, तो प्रिंट कैसा लग रहा है, लेआउट क्या होगा, टैगलाइन ब्रॉड होनी चाहिए या नहीं, कहाँ पे लोगो प्लेस होगा, एड्रेस होना चाहिए कि नहीं, कौन सा ऑफर है, कलर स्कीम. दिस ऑल कम्स अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. कि वो प्रोडक्शन होने के बाद कैसा होगा, सर्कुलेशन कब होगा, दैट ऑल कम्स अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. So this is a chart we can see
फर्स्ट हमने देखा है अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर क्या करता है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में काम करता है। फर्स्ट इज क्रिएटिव, देन इज रिसर्च एंड देन इज मीडिया। अकाउंट मैनेजर को क्या करना है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। अब क्रिएटिव में क्या आ जाता है, कॉपी राइटर्स, जो लोग कंटेंट का कॉपी बना के एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं, टेक्स्ट, उसका बॉडी, उसका लेआउट, उसका टाइटल सब। देन कम्स आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, वो क्रिएटिविटी में फोकस करता है, कौन से कलर स्कीम्स, कौन सा लोकेशन, कौन से कलर्स हम लोग जो हीरो है या हीरोइन है टीवीसी में उसको पहनाने वाले हैं, बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर आर्ट डायरेक्टर। देन इज प्रोडक्शन। एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारा प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है। देन इज रिसर्च। रिसर्च में क्या करना है हमको, कंज्यूमर रिसर्च कैसे करेंगे, सर्वे के थ्रू या फेस टू फेस इंटरव्यूज के थ्रू लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना, व्हाट डू दे रिक्वायर, उसके हिसाब से एड फॉर्मेशन करना। देन कम्स मीडिया रिसर्च। मीडिया रिसर्च एज इन कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रेंडिंग है, कहाँ पे हम हमारे टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन कम्स मीडिया। मीडिया में आता है मीडिया रिसर्च, मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग, कि अगर हम लोग मीडिया रिसर्च कर रहे हैं तो कौन सा मीडिया, मीडिया प्लानिंग, अगर हम लोगों ने ये मीडिया प्लेटफॉर्म चूज किया है तो उसमें कितना खर्चा होगा, कितने दिनों के लिए ऐड होगा, कितने टाइम तक ऐड कैंपेन चलेगा। Then is media buying, purchasing and then placing the ad. So next which we are going to learn is the difference between graphic designer and the advertising designer. अब advertising designer एक बड़ा टर्म है और graphic designer उससे छोटा टर्म है। Graphic designing comes under advertising design. This is a huge confusion which is among our new generation, that what is graphic designer actually and what exactly is advertising design. So the first topic which we are going to cover in the differences is, जो भी products advertising design में आ जाते हैं और graphic designing में। advertising design में हम लोग क्या करते हैं, social media ads बनाते हैं, but graphic designing में हम लोग क्या करते हैं, logo create करते हैं। next है Google ads। हम लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स बनाते हैं, पॉपअप एड्स होते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में है आइकॉन एंड पिक्टोग्राम्स, तो ये वेरिएशन है। एडवर्टाइजिंग डिजाइन में हम लोग यूट्यूब एड्स बनाते हैं, बैनर एड्स बनाते हैं, ईमेल बैनर्स बनाते हैं, जबकि वेयर एज इन ग्राफिक डिजाइनिंग व्हाट वी डू इज वी मेक विजुअल आइडेंटिटी स्ट्रेटेजी, एडिटोरियल डिजाइन, टाइपोग्राफी एंड पैकेजिंग। ये जो चीजें होती है अलग अलग प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्ट लाइन अलग है, इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोडक्ट लाइन अलग है। नेक्स्ट इज द पर्पस। एडवर्टाइजिंग डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं, टू अट्रैक्ट द ऑडियंस यूजिंग गुड डिजाइन्स फॉर एडवर्टाइजिंग। और ग्राफिक डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग, विजुअल्स बनाते, ग्राफिक्स बनाते, ऐसे ग्राफिक्स जो लोगों को अच्छे लगे, अट्रैक्ट करें। पर ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग। नेक्स्ट इज what we do is, when we are conducting the research of advertising design, we focus on audience, perception, trends and regulation. But whenever we are talking about the research part in graphic designing, what we focus on is brand story, कि ब्रांड अपना क्या मिशन और विजन शेयर करना चाहता है, वो ग्राफिक के थ्रू, वो एड के थ्रू, वो पिक्चर के थ्रू। And what is the audience perception? What perception we need to make in their mind while placing the ads? So next is development. जब भी हम लोग advertising design की development की बात करते हैं, there is less time required in advertising design, and when we develop a whenever we do graphic designing, it requires a longer period of time. So the products are very reusable, periodical for campaigns, and when we talk about the graphic designing, products are rarely repurposed and redesigned. So this was the huge difference between graphic designer and the advertising designer. So now we are going to learn about the process of research design, कि जब भी हम लोग एड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पहले हमको रिसर्च करना पड़ता है
कि हमारा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हमारे ऐड में क्या फीचर्स हमको ऐड करने हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने हैं, हमको हमारा यूएसपी कैसे हाईलाइट करना है. दिस ऑल कम्स अंडर द रिसर्च ऑफ एड डिज़ाइन. So the process of research design is first of all प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है. नेक्स्ट कम्स द मार्केट में जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ TA, दैट इज टारगेट ऑडियंस का साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक्स, उनकी लाइकिंग्स, उनकी डिसलाइकिंग्स, उनका एज ग्रुप, उनका सैलरी, उनका फैमिली इनकम, उनका what all trends they are into, ये सब चीज़ें, उनका लोकेशन, सब चीज़ें साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स में आते हैं. वी नीड टू बाइफर्केट दैट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे मार्केट में हमारे टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. नेक्स्ट कम्स मैसेज स्ट्रेटेजी, व्हाट टू से एंड हाउ टू से. देन कम्स कंपटीशन एंड क्लेम, कि हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से क्या बेटर कर रहा है, क्या फीचर्स हमारे प्रोडक्ट में लैकिंग है, या फीचर्स होते हुए भी लोगों को पता नहीं है तो हमको उसको कैसे हाईलाइट करना है. फिफ्थ इज विजुअलाइजेशन एंड कॉपी मतलब एड की कॉपी बनाना. देन इज इलस्ट्रेटर्स, चूजिंग वन अमंग. वी नीड टू make good illustrations for our advertising so it will make our ad more attractive. Then comes execution, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एग्जीक्यूशन में आ जाता है कि हमारा जो एड है उसमें हम लोग कैसे डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, क्या ग्राफिक्स यूज़ करने वाले हैं, व्हाट ऑल पिक्चर्स वी आर गोइंग टू यूज़, व्हाट फॉन्ट, व्हाट लेआउट. नेक्स्ट पार्ट इज आर्ट डायरेक्शन. अब आर्ट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, whenever we shoot ad, it may be for TVC. So TVC में आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है, सेटअप, लोकेशन, कलर कोऑर्डिनेशन, कलर स्कीम, देन थिंग्स विच वी कीप इन द सेट, जैसे कि सोफा हो गया, टेबल हो गया, लैम्प हो गया, क्लॉक हो गया. These minute details are covered under art direction. इतनी छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से कलर का काउच होगा, कौन से कलर का पीछे का बैकग्राउंड होगा, दीवारों पे कलर कौन सा होगा. मतलब ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है. एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर्स करते क्या है, सारी चीज़ें जो सेलिब्रिटी या जो एक्टर हमारे एड में होने वाला है उसका क्या अटायर होगा, विच जैकेट, व्हाट कलर, उसके साथ कौन से शूज़ की पेयरिंग है, प्रोडक्ट को कैसे हाईलाइट करना है, प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से उसके कपड़ों का कलर. दिस ऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू कि आर्ट डायरेक्शन में होता क्या है. अभी अगर हम लोग प्रिंट के आर्ट डायरेक्शन की बात करें तो उसमें भी सेम है, कलर स्कीम, क्रिएटिविटी, फॉन्ट, हेडलाइन, टेक्स्ट, स्लोगन्स कौन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है. सो द रोल ऑफ आर्ट डायरेक्टर इन वेरियस मीडिया, डिटेलिंग इन इलस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बोला इलस्ट्रेशन में बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है. आर्ट डायरेक्टर क्या क्या करते हैं, लोकेशन, मॉडल्स, कॉस्ट्यूम्स एंड वर्किंग ऑन स्टोरी बोर्ड. स्टोरी बोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन TVC. जब भी हम लोग कोई भी शूट करते हैं विजुअल्स के लिए तो हम लोग एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं एंड वी नीड इट टू एक्सप्लेन इट टू द एक्टर विच इज गोइंग टू परफॉर्म इन द एड. छोटे छोटे से ग्लिम्सेस बने हुए होते हैं, एक हायरार्की में वो स्टोरी बोर्ड चलता है और हम लोग एक्टर को समझा पाते हैं. Next is in a design project, art direction is the management of all the aspects of the project, and art director is responsible for coordinating and supervising the work of designers, artists and other creatives who are working on the project at the hand. अब क्रिएटिव टीम में ना बहुत सारे लोग होते हैं. कौन होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन असिस्टेंट होता है, क्रिएटिव असिस्टेंट होता है, आर्ट असिस्टेंट होता है, कॉपीराइटर होता है. ये सारे लोग क्रिएटिव टीम में काम करते हैं और इनके साथ कोऑर्डिनेशन में कौन रहता है, हमारा आर्ट डायरेक्टर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज art direction. Art direction deals with all forms of visual media but not just the creation of it. आर्ट डायरेक्टर खुद उसको क्रिएट नहीं करता है बट आर्ट डायरेक्टर उसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं कि क्या इसमें और ऐड होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, द डिटेल्स विच ही वांट्स इन द एड.
An art director may have a hand in photography, web designing or logo creation or a billboard. They act as a liaison between the artistic team and the clients. They frequently communicate information about the project from one side to the other side, including clients' feedback. अब ये क्या करते हैं, एक ब्रिज डेवलप करते हैं. जो गैप आ जाती है आर्टिस्ट के बीच में और हमारे क्लाइंट के बीच में, वो गैप को बिल्ड करने खत्म करने के लिए एक ब्रिज फॉर्म करता है. कैसे? आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करता है कि वो जो हम लोग टीवी से शूट कर रहे हैं उसमें क्या मैसेज पास होना चाहिए, क्या इमोशनल अपील यूज कर रहे हैं हम लोग, वो अपील से कैसे मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, क्या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वो उनको अच्छे से समझा पाता है. सो इट इज अ लिंक बिटवीन द क्लाइंट and the artistic team which all are working for an ad. So this is all the work covered under art direction. Thank you. This is it. आज के लिए इतना ही. Next chapter में हम लोग समझेंगे what are the stationery, what are the different types of ad which we are going to use in ad campaigns.